So earlier, I used to focus on general courses. There, I thought to bring 40 lakh people, a minimum of 400 courses will be required. But then I changed my style. I was like, okay, if I take 40 courses of absolutely top leaders of the world, Mm-hmm. then maybe they can inspire their teams, they can inspire their colleagues, and so on Mm-hmm. and so forth. So to reach 40 lakh people, I intend to take only 40 courses of the top entrepreneurs of the world. Um, yes, everybody has their ups and downs. So did I. So real estate, we saw tough times for 10 years, and then COVID also. COVID was a decent time, honestly. We did good we have good done good work. We focused on one project at a time, less work but good quality work. So we are known as the DLF Camellias of Noida. So the most luxurious project, Gulshan Dynasty, Mm-hmm. is our latest success, where we in a 6 acre property approx, we're building 208 apartments, 34-story high buildings, and every apartment is 4,700 square feet. We launched at 4.5 crores about 3.5, 4 years ago, and now everything is sold out, and the resale value is 9.5 crores. So and it's all Gurudev's grace, of course, that because real estate is a very risky business. It involves a lot of human capital, a lot of physical capital. So Mm-hmm. one project can make you hero, and the same project can make you zero, because the life cycle of a project is 4 years. And in 4 years, so many things change. Yeah. Governments change, wars start happening, and they stop. COVID comes and goes. So you really have to manage everything very well. Mm-hmm. But thanks to the Sadhana Seva Satsang, Gurudev's physical presence, his knowledge, his guidance, and good people, good people. Mm-hmm. And, as a teacher, I always feel that you are only a teacher when you're sitting as a teacher. Hmm. Otherwise, you're a Hmm. student of life. So if you be Yeah. humble, if you're always listening, then you will see that somebody is always teaching you something. That's a little bit of about me. Thank you. Wow. Wow. I'm feeling so wow about the context that I've heard. Right. You are already establishing your firm in the most beautiful places of the country, where Dehradun, Goa. Wow, it's so amazing. And the strategy that you applied for reaching to 40 lakh people, and like, wow, that is so amazing. Like innovative and amazing. So there's so many things that I have learned in this initial introduction. I hope our audience have too. So, Dirvam, I have few set of questions from that to be asked. Okay, so ऐसा बोलते हैं, हम हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स यूज करेंगे, क्योंकि we have English. दो अच्छा इंग्लिश okay, क्योंकि we No, have please. हाँ, we have both category of audience. So ऐसा बोलते हैं कि ना एक जितना जितना इंसान जीवन जीता है, उसकी ना डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और फेलियर बदलती जाती है हर जीवन के पड़ाव में. तो for you, what is that what do you feel about what is success, what do you think about what is failure, and also adding to this is, what do you feel about as our podcast is, this is our first podcast, and we are honored to have you here. So what makes you to make a balance between this success, failure, and the life you have your personal life, you have your professional life, you have you have to work on yourself. So there are so many aspects of being a person and being a teacher and being a, like, you have to be a son, you have to be a daughter. There are so many faces that you have to carry all around and you still have 24 hours. So I have so many things in one question, so I hope you answer it That's all right. as much as you can about that. Yes. No, no, thank you for having me for your first podcast. I'm very humbled by this. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, कि मुझे आपने इतने लायक समझा कि आपके पहले पॉडकास्ट में मुझे आने का मौका मिला। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, वेरी फॉर्चुनेट। सो सक्सेस एंड फेलियर, बेसिकली सक्सेस आप अपनी खुद डिफाइन करते हो आइडियली। Mm-hmm. आपके लिए जो सक्सेस है वो दूसरे के लिए डिफरेंट हो सकती है। यस, फॉर Mm-hmm. एग्जाम्पल Mm-hmm. समबडी अर्न्स 1 करोड़, वो उनके लिए सक्सेस है। समबडी, उनको 500 करोड़ आते हैं, वो भी उनको फील नहीं होता कि वो सक्सेस है। यस, बट गुरुदेव से सबसे बेस्ट ही कहते हैं, इफ यू हैव एन अनडाइंग स्माइल एंड द कॉन्फिडेंस Mm-hmm. that you can take on any challenge in the world, do any good work in the world,
देन यू आर, है ना। अगर आपकी ऐसी खुले दिल की मुस्कुराहट है और आपके अंदर वो आत्मविश्वास है, भरोसा है अपने ऊपर कि हाँ, कोई भी कार्य हम करेंगे तो 100% देंगे, और कोई भी ऐसा बड़े से बड़ा मुश्किल कार्य मेरे लिए मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति है, क्षमता है, मेरे पास वो ज्ञान है, तो वही सक्सेस की डेफिनेशन है। तो सक्सेस आउटवर्डली नहीं, इनवर्डली डिफाइन होती है। यस। और आउटवर्डली जैसे मैंने बोला, आप लोग अपने अपने स्तर पे अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। यस। अब जहां तक सवाल आता है फेलियर का, देखो फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बिकॉज फेलियर असली में फेलियर है ही नहीं। हमने कोई भी, कभी भी हम लो डाउन होते हैं, हमें लॉस होता है, कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे प्लान मुताबिक नहीं होती, या तो उसे हम फेलियर के इसका टैग दे देते हैं। यस। अगर हम ध्यान से देखें तो लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप एंड डाउन। यस। इट्स अ साइनसॉइडल वेव, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है, तो कहीं पे उतार आएगा, कहीं पे चढ़ाव आएगा, बट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यस। तो सिमिलरली अगर आप एक लिमिट बना लेते हो, अपने ऊपर लिमिट डिफाइन करते हो कि वो ये डाउन हो गया, अब यही लिमिट है, तो उससे आप फेल। तो ये जर्नी है। यस। और ये जर्नी चलती रहेगी। असली में सक्सेसफुल वो होता है जो जितना भी चाहे फेलियर आए, सेटबैक्स आए, चाहे लॉसेस हो, वो रुकता नहीं है, वो गिव अप नहीं करता। अगेन, फेलियर बाहर अलग है और अंदर अलग है। बाहर आपने खुद डिफाइन कर रखा है ये फेलियर हुआ, लेकिन अंदर का फेलियर तब होता है जब आप डिसाइड कर लेते हो कि अब मैं थक गया, अब मैं हार गया, अब मैं गिव अप करता हूं, तो वो अंदर का फेलियर, असली फेलियर वो है। लेकिन अगर आप डिसाइड कर लो कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई एम नॉट गोइंग टू बी टायर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू लूज, बाहर तो जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, बट मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहूंगा, आई कीप वॉकिंग, कीप मूविंग टुवर्ड्स माय गोल, then there is no failure, it is just part of life, right? Yeah, yeah. है ना। सो एंड दीज आर ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यस। हमें स्कूल में थोड़ा सा गलत सिखाया गया, हमें फेलियर से डराया गया, हमें सक्सेस से प्यार कराया गया। एक्चुअली दीज जस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो Yeah. दिस इज इट। Hmm. Okay, so now coming to the second part of the question that कि आप कैसे, जैसे मैंने बोला ना कि मुखौटे ओढ़ने पड़ते हैं हमको, क्योंकि देखो आपको आपको आपके होम हेल्प है या आपके कलीग्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, आपको हर बार एक अलग अलग सा मुखौटा पहन के आपको जीना पड़ता है। दिस इज व्हाट समटाइम्स आई फील। इसको पढ़ता भी है बट यू एंजॉय इट ऑल्सो कि अरे बिल्कुल बिल्कुल मस्ती करनी है, बिल्कुल छपरियों टाइप मस्ती करनी है। दिस इज व्हाट आई फील समटाइम्स। And then being something decent, you have to be very sincere. And I am being a team lead in Accenture, so I have to be very sincere sometimes. That with the fresher, you have to maintain that aura that you are damn serious. So इस टाइम में ना बैलेंस कभी कभी ऑफ बैलेंस हो जाता है, कभी कभी it suffocates you. So how do you find that balance and how to be natural at that point of time? This is the second question for you. Beautiful question, very nice question, thank you for asking this, and love your enthusiasm also, very good. तो Thank you so much. बैलेंस इज वेरी सिंपल, आप जो भी रोल प्ले कर रहे हो आपको उस पर 100% देना है, दैट्स हाँ इट। हाँ अगर इफ यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग, इफ यू आर डूइंग सम बिजनेस, क्रैकिंग सम डील, तो हम्म आपको 100% उस पर फोकस होना चाहिए, आपको 100% वहां देना है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हो तो 100% ऐसे मस्ती करो कि बस आपसे बड़ा मस्तीखोर कोई नहीं, यू नो। हम्म अगर आप किसी सेंसिटिव सिचुएशन में हो जहाँ टफ, कोई किसी के साथ कुछ, किसी को हेल्प चाहिए है, या किसी को somebody is going through a tough time, या कोई गुजर गया है, तो वहां पे आप 100% दो, बी देयर फॉर देम, सपोर्ट करो, सेवा करो जैसे कर सकते हो। हम्म जब आप सेवा करते हो तो फिर 100% सेवा करो, कोई मेवा करनी, जितना आप दे सकते हो, जितना आप कर सकते हो करो, फॉर एग्जाम्पल जब मैं एक बिजनेस मीटिंग लेता हूँ तो मान लो 45 मिनट्स में एक बिजनेस मीटिंग में फोकस से काम की बात करता हूँ, हम्म नेगोशिएट करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, जरूरत पड़ने पर थोड़ा आर्ग्यू भी करता हूँ, अपना पॉइंट रखता हूँ, सामने वाले पॉइंट भी रखता हूँ। यस। वो बिजनेस मीटिंग की काम खत्म हो जाता है, लास्ट के 10 मिनट्स या 5 मिनट्स मैं उन्हें सेवा भाव से इनवाइट करता हूँ, प्लीज कम टू माई कोर्स, आई टीच मेडिटेशन एज वेल, आई लव टू हैव यू। यस। तो जब मैं मीटिंग कर रहा हूँ तो आई एम वेरी फोकस्ड कि दिस इज व्हाट आई वांट, दीज आर डिलीवरेबल्स, दीज आर द पेमेंट प्लान, पेमेंट टर्म्स, सब चीजें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, टर्म शीट, पेपर वर्क, एवरीथिंग। लेकिन या जब मैं सेवा की बात कर रहा हूँ तो वहां पे मेरा भाव है, जहाँ पे मैं उनको इनवाइट करता हूँ, वहां पे मैं अतिथि देवो भव का भाव लेके बैठता हूँ, आपका अपनेपन का भाव लेके बैठता हूँ।
और हम्म बैलेंस जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले दो चीजें और है आपको, यू हैव टू नो दैट यू नो बैलेंस, हम्म हम्म बैलेंस आपके अंदर है ही। अगर आप हम्म ये सोचते हो मेरे अंदर बैलेंस नहीं है, कैसे आएगा, फिर उसके बाद उस पर कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर फेथ मिसिंग है। तो फेथ इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। यू हैव हम्म टू हैव फेथ ऑल्सो हम्म कि आई विल बी एबल टू मैनेज ऑल ऑफ दिस। ये अगर हम्म अगर फेथ, श्रद्धा आपके अंदर है, एक हम्म आत्मविश्वास आपके अंदर है, हम्म देन नेचर सपोर्ट्स यू। यस। आप हम्म सेंसिटिव हो गया, अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, सुदर्शन हम्म क्रिया, ध्यान, योगा, प्राणायाम, साधना, ये सब करते हो, हम्म आप देखोगे आपका जो अवेयरनेस है वो शार्प हो जाती है। आप हम्म ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा सजग हो जाते हो, या हम्म सटल ट्रूथ्स भी आप पढ़ पाते हो। एक होती है, और आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है। अब लोग समझते हैं इंट्यूशन के राइट थॉट एट द राइट टाइम, करेक्ट। ये तो है डेफिनेटली। ही इंट्यूशन, दिस इज वन लेवल ऑफ इंट्यूशन। यस। हम्म ये सही समय पे सही विचार आना, फिर आप बोलते हो। बट हम्म दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ ऑफ इंट्यूशन, देयर इज अनदर इंट्यूशन फ्रॉम द लेवल ऑफ द बीइंग। हम्म आप देखोगे आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करती है, इन द सेंस, अगर मैं बैठा हूं और मुझे, मान लो मैंने स्केड्यूल करा हुआ है कि मुझे 10 बजे एक और मीटिंग करनी है, एंड मान लो हम्म मैं मीटिंग के अंदर फ्लो में हूं, हम्म तो आप ऑब्जर्व करोगे आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आपको क्यूज देगी। आपको सडनली या तो थॉट आएगा, या आपका कहीं ना कहीं बैठे बैठे ना मेरा फेस अपने आप ऐसे घूम के घड़ी की तरफ चला जाता हम्म है। तो हम्म इट इज नॉट just intuition on the level of the thought, it is intuition on the level of the being also, there is a subconscious mind and there is a या superconscious mind. हम्म ये दोनों भी हमारे पार्ट है। यस। सो हम्म कॉन्शियस माइंड से हम डेफिनेटली बहुत चीजें प्लान कर रहे हैं, चल रहे हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड इज वेरी इंटेलिजेंट। कभी कभी आप हम्म वर्बली झूठ बोल सकते हो, बट आपकी बॉडी आपको बता देती है क्या सच है, यू नो हम्म सो सिमिलरली, फर्स्ट यू नीड टू नो, हम्म यस आई नो बैलेंस। हम्म आ जाएगा, बैलेंस आ रहा है। और अगर नहीं आता, देखो एवरी समटाइम्स थोड़े बहुत इश्यूज, सिचुएशंस हो जाती है, तो बहुत जल्दी गिव अप नहीं करना। एक बारी नहीं हम्म आया, गलती हो गई, 2 बारी, 3 बारी, 10 बारी, 15 बारी, कोई बात। हम्म आप 2 बारी के बाद ही, 2 गलतियों के बाद, 3 गलतियों के बाद आप लेबल कर लेते हो खुद को, नहीं मेरे को तो बैलेंस आता ही नहीं है। फिर हम्म आपकी बॉडी, आपका माइंड क्या बोलता है? जो हुक्म मेरे आका, राइट। तो बी हाँ इट। फिर नेचर आपके वाक्य को, आपके संकल्प को सच करने में लग जाती है। यस। वाह हम्म तो इट्स ओके, डोंट लेबल योरसेल्फ, या विल गेट हम्म देयर। wow यस। thank you so much for this lovely answer. वही मतलब वो वाली मुझे आपकी बात से वो वाली बात याद आई कि अलादीन का चिराग वो जिन बोले, जिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जिन जिन की तरह काम करेगा, हाँ हुक्म मेरे आका एंड यू विल डू इट. इट्स सो अमेजिंग एंड सो आई एम एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. इट्स सो अमेजिंग. दिवन जी, पता है एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हमारी टीम, एक्चुअली हमारी टीम है ना पिछले 5 सालों से बहुत सेवा कर रही है. लाइक वी हैव we have so many people in our team and we are so enthusiastic and people used to get inspired and they ask very frequently with these things. This question is very common, that is कि हमारा मन तो बहुत होता है प्रस सेवा करने का, पर हम कर नहीं पाते. तो देयर इज सम बिलीफ सिस्टम आई फील समटाइम्स when I observe people, when then I feel that there are comfort zones that they don't want to break. Okay, and there are so many other aspects that they want to do and they want to break it, but somehow ना वो मन के हारे हार वाली बात आ जाती है. तो अपने मनोबल को या अपनी जो बनाई हुई वो एक ग्लास वॉलिंग, ग्लास सीलिंग बोल सकते हैं उसको, उसको अपने आप से तोड़ना पड़ेगा, किसी कोई और तोड़ने नहीं आएगा. तो उस बारे में आपको क्या लगता है कि लाइक हैव यू फेस समथिंग एंड हाउ डिड यू ब्रेक इट, और यू हैव समथिंग टू शेयर विद अस अबाउट दिस? यस यस, एवरीबडी गोस थ्रू दिस, आई एम नॉट, हर हाँ किसी, हर कोई व्यक्ति इससे गुजरता है। हाँ हाँ. तो रीजन है, तभी कहते हैं संघ शक्ति कलयुगे, इस कलयुग में संघ की शक्ति है। देयर इज पावर व्हेन यू डू समथिंग इन द ग्रुप, राइट? हम्म व्हेन यू जॉइन, दैट इज व्हाई गुरुदेव हैव गिवन such powerful courses, happiness program, the DSN program, they bring you out of your हम्म comfort zone. A हम्म lot of times we feel, हमें ऐसा लगता है कि हम खुद से ही कर लेंगे, या, हम्म बट ऐसा मुमकिन नहीं। कहा जाता है गुरु बिना गति नहीं, क्योंकि बहुत सी चीजें आपको कोई चाहिए होता है, देखने वाला, गाइड करने वाला आपको। आप हम्म अपने बारे में एक तरीके से आपके सोच विचार है, आपको लगता है मैं ऐसा हूं, हम्म बट एक गुरु अगर या एक कोच
सामने हम्म बैठा होता है, वो देख के आपको बता देगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। यस। हम्म जैसे आप अपने टीम्स, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, उनको देख के बता देते हो ना कि यार ये थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। यस और नो। या और उनको भी फील होता, उनको लगता है मैं तो सब सही कर रहा हूँ। होता है कि नहीं होता? है ना? हाँ हाँ तो सिमिलरली आपके साथ भी ऐसा ही है। Yes. And many हम्म times we need a guru in life. We need a teacher in life. We need a coach in life. जो हमें भी देख के हमें बताए कि यहाँ हम improve कर सकते हैं, यहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट? हम्म फिर अक्सर क्या होता है जब हमारे पास टफ टाइम आता है तो हम अपने आप को अकेला कर लेते हैं। वी क्लोज आवर सेल्स इन द रूम। हम हम्म कमरे में खुद को बंद कर लेंगे, या हम डिस्ट्रैक्शंस में घुस जाएंगे, या वी फोकस मोर डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस, हम्म एंटरटेनमेंट, टीवी, नेटफ्लिक्स, एक्सेस ईटिंग, ऑल ऑफ दैट, टू मैनेज आवर स्ट्रेस, टू मैनेज आवर लोनलीनेस। यस। हम्म एंड वी गो अलूफ अलूफ चले जाते हैं। यस। हम्म दिस इज द रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट। रादर, जब ऐसे टफ टाइम आए, यू नीड टू ज्वाइन सम वर्कशॉप, यू नीड अ ग्रेट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ऐसे एक दो दोस्त से जाके शेयर करो, बात करो। कभी कभी क्या होता है, दोस्त भी उन्हीं चीजों से गुजर रहे हैं, तो आपको कैसे हेल्प करेंगे? हम्म यू नो। तो फिर वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स, राइट? हम सबकी, पेरेंट्स की कंडीशनिंग गलत हो गई तो बच्चों की कंडीशनिंग गलत हो जाती है, बच्चों की कंडीशनिंग गलत हो रही है तो बच्चों के बच्चों की कंडीशनिंग गलत हो रही है। यस। सही बात है आप स्ट्रेस में हो, आप अपने दोस्त के पास जाते हो, वो जाके कहता है आपको दारू पी लो। चलो आपने पी ली, हाँ चलो आपने पी ली, या कुछ और कर लो, मस्ती कर लो। उस हम्म टाइम के लिए तो आपने उससे डिस्ट्रैक्ट कर लिया, बट रूट कॉज तो सॉल्व नहीं हुआ। रूट कॉज पे हम्म हमें वर्क करना है। अच्छा, हम्म रूट कॉज पे कैसे वर्क करें, राइट? हम्म दैट्स वेयर यू नीड कोच, यू नीड गुरु, यू नीड आउटलाइन टीचर्स, यू हम्म नीड मेंटर्स। आपके प्रोफेशनल मेंटर हो सकते हैं, यू नीड सम सीनियर पीपल, योर हम्म पेरेंट्स। और आपके फ्रेंड्स में ही कुछ एक दो होंगे हु आर वेरी वाइज। यू नीड द हम्म वाइज मैन, वाइज पीपल। यस। या हम्म आपके जो आर्ट ऑफ लिविंग के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, अगर हैं तो, बिकॉज एक अप्रोच होती है, यू बेनिफिट अप्रोच। ओके अक्सर हमें, अक्सर दुनिया में हमें दोस्त मिलते हैं, लोग मिलते हैं, पहले अपना फायदा सोचते हैं, फिर आपका फायदा सोचते हैं। इसे कहते हैं आई बेनिफिट अप्रोच। दैट मीन्स आई शुड बेनिफिट फर्स्ट, देन आई। यस। बट आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद, इसके कोर्सेज करने के बाद, टीचर बनने के बाद, मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जो लोग मेरे दोस्त बने, जो संग बना, द ग्रुप आई वाज अ पार्ट ऑफ, हर किसी का एक, और ज्यादा किसी भी नहीं कहूंगा, लोग लोग हैं हर जगह, बट बहुत से लोगों का यू बेनिफिट अप्रोच है कि वो व्यक्ति पहले आपके बारे में, आपके बारे में सोच रहा है, आप उसके फायदे के बारे में सोच रहे हो। ऐसा जब रिलेशनशिप बनता है, ऐसे ग्रुप में जब एनर्जी बनती है, तो आई टेल यू, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत होती है उस ग्रुप में। अब हम कॉर्पोरेट टीम्स के बारे में बात करते हैं। मेनी टाइम्स ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं हमारी टीम्स के लिए। जैसे आई एम रनिंग कंपनी विद स्ट्रेंथ ऑफ 350 पीपल, एंड दिस इज आर वाइट कॉलर स्टाफ, आर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट स्टाफ। उसके अलावा अराउंड 1200 लेबर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑल ऑफ दैट, एक्सटर्नल पीपल, राइट? तो यूजुअली जब आप ट्रेनिंग्स एंड ऑल कराते हो, तो ट्रेनिंग्स में क्या होता है, 2 दिन अगेन वेरी नाइस एंटरटेनिंग, ठीक है, ये सब हो रहा है, उसके बाद सब वापस सेटल हो जाते हैं। दैट्स वेयर आफ्टर डूइंग कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स में आपको अंदर से इंस्पायर करा जाता है, आपको बिलोंगिंगनेस लाई जाती है, एक सेंस ऑफ ओनरशिप। टू बी अ लीडर, यू डोंट नीड टू बी द ओनर ऑफ द बिजनेस, you need to feel like you own the business. You feel like that I am there for my people, I'm there for my friends. You benefit approach आता है, you know? तो जब आप कभी डाउन ट्रॉटन हो, लेजी हो, जब आप कभी ऐसे फंसो, तो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स, आर्ट लिविंग प्रोग्राम्स, जस्ट गो एंड सिट इन इट। यू नो, अगर आपको लगता है आप ऑनलाइन नॉलेज सुन के, फिर ऑनलाइन कहीं से सीख के अपने आप कर लोगे, तो आप भी जानते हो आपके पास नॉलेज सारी है, बट उस नॉलेज को आप सर पे बोझ की तरह लेके चल रहे हो इन स्ट्रेस, कहीं ना कहीं वो knowledge अंदर नहीं आ पाई। क्या? वर्सेस जब आप किसी कोर्स में बैठते हो, या जब आप गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से जाके मिलते हो, ही किंडल्स द लाइफ फोर्स विद इन यू। एक ऐसी एनर्जी अंदर से खिलती है, यस, कि फिर सडनली यू फील अ मैसिव शिफ्ट। या, Yeah. तो Wow. इसीलिए Mm-hmm. प्लीज, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग योर सेल्फ इन अ रूम, इन अ शेल, गो आउट, आस्क फॉर हेल्प, बोलो, शेयर करो, कि सबसे मत करो, खास वालों से करो, या विजवाइज लोगों से करो, जिनके पास ज्ञान है या जो ट्रेंड है।
गुरुदेव हम्म से करो, पाटलिंग टीचर्स से करो, अपने प्रोफेशनल मेंटर्स से करो, अपने सीनियर्स जो आपको लगता है वो अच्छा गाइड करते हैं। आप सबको पता है आपकी लाइफ में कौन कौन ऐसे व्यक्ति है जिनकी गाइडेंस अच्छी रहती है। यस और नो? हम्म। और वाह। रीच आउट, डोंट क्लोज, हम्म डोंट रन इनटू डिस्ट्रैक्शंस, रीच आउट, सी इससे बेटर कैसे कर सकते हैं, बी इन द कंपनी ऑफ पीपल, सेलिब्रेट लाइफ, यू विल हम्म। सी धीरे धीरे होगा। वाह, अमेजिंग, सच अ लवली इंसाइट। सो एक एक क्वेश्चन ना, दिस इज समथिंग आई फील कि ना, जब जब जैसे बीइंग एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, यू डू सेवा, ओके, यू मेंटेन योर पर्सनल लाइफ, you maintain your professional life, then you maintain an art of living life as well, okay. Now what happens, sometime आपकी पर्सनल लाइफ जो होती है, आपके स्पाउस हो गए या आपके बहन भाई हैं या पेरेंट्स हैं, या कभी कभी आपकी हेल्थ, या कभी कभी आपके गोल्स, ये भी पीछे पीछे कभी कभी लैग फील होते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। सो how do you feel, like, do you have experienced this, and if so, then how did you deal with that? कि आपकी गोल्स और पर्सनल लाइफ लैग बिहाइंड कर रही है। हाँ, कभी कभी ऐसा फील होता है, जैसे घर वाले बोल देते हैं कि अरे तुम हमारे साथ बैठ के खाना भी नहीं खा रहे हो, क्या फायदा इतने काम करने का, क्या फायदा इतना पैसे कमाने का, तुम्हारे गुरुजी तो खाना ला के नहीं दे रहे, समथिंग, समटाइम्स दे पीपल से शेयर दैट दे हैव टू लिसन दिस, बट हाउ टू मेंटेन दैट, हेल्थ को लॉस नहीं करना है, पर्सनल रिलेशनशिप को भी टाइम देना है, तो एक इंसान कितना सब डिवाइडेड एनर्जी के साथ कभी कभी चलता है, तो उसको कैसे मैनेज करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम श्योर सब ये फेस करते हैं। इसमें नंबर वन सूत्र इज यू हैव टू इंक्रीज योर एनर्जी। हम्म। इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी लेवल्स। अगर आपकी एनर्जी हाई है तो यू विल बी एबल टू मैनेज इजीली। यू विल, आपको लोगों के जो ओपिनियंस हैं आप उसमें नहीं फंसोगे। आपको अंदर से ही फील हो जाएगा मुझे यहाँ टाइम ज्यादा देना है या वहां देना है। या अगर आपकी प्रायोरिटी है कुछ काम पे एंड आपकी फैमिली को, दे डोंट नो कि आपकी वो काम की प्रायोरिटी है, यू नो, हम्म। आप अच्छे से उन्हें कम्युनिकेट कर पाओगे। यस, हम्म आप उन्हें बता पाओगे कि आई हैव एन इंपॉर्टेंट वर्क प्रायोरिटी, बट हम्म डेफिनेटली आई विल मेक इट अप टू यू। आप उनके साथ कोई और टाइम स्केड्यूल करोगे। हम्म यस, बट ये सब आप इजीली मैनेज कर पाओगे व्हेन योर एनर्जी लेवल्स आर हाई। जब आपकी हम्म एनर्जी लो होगा तो आप पीयर प्रेशर में फंसोगे। हम्म फैमिली बोलेगी, आपको गिल्ट लगेगा, काम पे काम नहीं बना वहां पे कुछ आपको सुनने को मिलेगा, फिर आपको गिल्ट लगेगा। खुद आपको हाँ। खुद आपको डाउट होने शुरू हो जाएंगे, डाउट्स, यू नो, क्या हम्म कर रहे हो, ठीक कर रहे हो नहीं कर रहा। अब हम्म इसका मतलब आपकी एनर्जी लेवल थोड़े से लो हो रहे हैं। सो देयर हम्म यू हैव टू डू सुदर्शन क्रिया, यू हैव टू डू योर प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स, यू नो, हम्म you have to do seva. Yes, when you go uplift somebody, you see automatic upliftment happens from within. You know, seva purifies your karmas. सेवा आपके कर्म काटता है। यू नो, कुछ बुरे कर्म होते हैं, कुछ गलत कर्म होते हैं, जाने अनजाने इस लाइफ में या किसी लाइफ में हमसे कुछ ऐसे कर्म हुए हैं, होते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं किसी को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। यस, या। उसको हम काउंटर कैसे करें? अच्छे कर्म से, पॉजिटिव डीड से। सो दैट्स वेयर वी गो डू सेवा। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म कैसे करते हैं? कर्म योग क्या होता है? कर्म योग इज खुशी से करा हुआ कार्य, कर्म योग। यस यस, सेवा, खुशी के लिए करा हुआ कार्य अकर्म योग। इट इज नॉट सेवा, इट्स समवेयर बिजनेस। यस, या। व्हेन यू आर हैप्पी सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से, व्हेन यू डू सम सेल्फलेस सर्विस, यस, देन योर मेरिट इंक्रीजेस इन योर अकाउंट। देखो, बैंक अकाउंट है सिंपल। जब आप अच्छे पुण्य करते हो आपका पॉजिटिव अकाउंट अप होता रहता है, राइट? और वो पॉजिटिव अकाउंट अप होता है, आपका नेगेटिव अकाउंट डाउन होता है। दैट्स इट। तो इसीलिए सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी आपकी एनर्जी अपलिफ्ट रहती है। साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एनर्जी लेवल्स अपलिफ्ट रहते हैं। एंड ऑल्सो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? सी, डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस is one of the knowledge nuggets by Gurudev Shri Ravi Shankar ji in one of the programs that he teaches. वैसे तो सोचा जाए एक बड़ी सिंपल सी बात है, बट अब ऑब्जर्व करें कितना ज्यादा किसी का भी ओपिनियन आपको हर्ट करता है।
हम्म। या ट्रू ट्रू। और आप बेसिकली दूसरों के बटन दबाने के हिसाब से चल रहे हैं। किसी ने तारीफ कर दी तो आप खुश हैं, किसी ने उल्टा बोल दिया तो आप दुखी हो जाते हैं। आपका पूरा पूरा दिन, आपका पूरा पूरा हफ्ता, महीना, आप हम्म अपने बारे में माइंडसेट चेंज कर लेते हैं, दूसरों के बारे में माइंडसेट, लेबल्स पे लेबल्स लगाने लग जाते हैं। ये हम्म सब क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ, आप इनर स्ट्रेंथ पे नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम्म आपकी एनर्जी लो हो गई है। आपकी गलती नहीं है ये दुनिया में, because of pollution, because of lifestyle, because of food, because of the kind of company we keep, the news we watch. Yes, हम्म 5 things that affect our mind. 5 चीजें हैं जो हमारे मन पे प्रभाव डालती है। क्या क्या है? हम्म खाना, हम्म जैसा अन्न वैसा मन। यस। या कंपनी, या जैसे लोगों की कंपनी में बैठोगे वैसे। अगर आप आधे घंटे किसी की कंपनी में बैठोगे, दोज हु आर अब्यूजिंग, गाली दे रहे हैं, आप हम्म अपने आप 1 घंटे बाद किसी को गाली दे दोगे, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। हम्म और आप आधे घंटे ऐसी कंपनी में बैठोगे जो सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अपने आप आपको लगेगा वाह, आई कैन डू एनीथिंग। आपको अपलिफ्टेड, आपको हैप्पी फील होगा। हम्म कंपनी, देन प्लेस। आप जिस जगह पे सोते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उसका हम्म प्रभाव आप पे पड़ता है। आप हम्म एक बहुत ही गंदगी फैली हुई जगह पे चले जाओ, आपको अपने आप ही यू नो हम्म अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। यस और नो? या और आप ऐसी जगह पे जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, या आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है, या बड़ा ही नीट है, नीट एंड क्लीन, क्लेanलीनेस आल्सो हैज एनर्जी। या या तो अपने आप ही लाइट फील होता है। बाहर की क्लेanलीनेस से अंदर का माइंड क्लीन होने लगता है, बाहर की प्योरिटी से अंदर भी प्योरिटी आने लगती है। यस। हम्म सो प्लेस, पीपल, फूड। यस। हम्म और बाकी दोनों अब आप ढूंढ के बताओ। व्हाई शुड एवरीवन गिव यू आंसर फॉर एवरीथिंग? खुद कुछ भी यूज करोगे, सर्च करोगे, खुद भी कोई क्यूरियोसिटी रखोगे, खुद भी कुछ आंसर ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? हम्म हाँ Yes? वाओ हमें हाँ सब कुछ प्लेटर में चाहिए, सब कुछ हमें रेडीमेड चाहिए बॉस। हम हम्म बस ब्लिंकिट विद बटन दबाएं और फट से आ जाए। यस और नो? या या चाहे नॉलेज हो, चाहे पैसे हो, वी वांट क्विक मनी। मेनी ऑफ अस वी वांट टू बी वेरी रिच, वी वांट टू बी वेरी फेमस, वी वांट टू हम्म ग्रेट वर्क इन लाइफ, बट वी वांट क्विक। कम से हम्म कम मेहनत में इजी से इजी आ जाए। यस। हम्म Everything will take some time, everything will take some effort, हम्म some of your energy, your intention, your attention, and your manifestation. Then it'll happen. Intention, attention, manifestation. Yes. वाओ वाओ Gurudev's formula. या Very सो nice. Srinivasan ji ने बोला है sleep. Very good. Very nice. वीरेंद्र जी ने बोला है time. Very good. Very nice. See, you have the knowledge. Yeah. समय से मन बदलता है। और बताइए। सो आई हैव टू क्वेश्चंस एकदम पैरेलली आ रहे हैं बट पहला क्वेश्चन ये है कि शिवम जी दिव्यम जी डू यू फील लाइक देर इज सम पर्पस टू बी ऑन दिस प्लैनेट डू यू फील लाइक दैट एंड डू यू फील लाइक ऐसा कुछ नहीं है मतलब व्हाट इज योर टेक अवे ऑन दिस पर्पस वाला चीज पे I love this, honestly. This was my favorite question. For years, I had this question. Not my purpose. I used to think, what is the purpose of human race? Human race का क्या purpose है planet में? या कि गुरुदेव कहते हैं बड़ा सोचो, थिंक बिग। एक बारी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, देन आई कम टू योर आंसर। एक बारी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, गुरुदेव का एक नॉलेज सेशन था वहाँ पे, आई थिंक 200-250 पीपल वर देयर। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पीछे बैठा था, कंफर्टेबली एंजॉय, वी वर डिस्कसिंग आवर 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर प्लान। ऐसे हम ऐसे हम सोच रहे थे कि यार 20 साल हाँ का प्लान बनाए, अक्सर लोग ये भी प्लान नहीं करते। हाँ 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 तो आए और गुरुदेव ने आई थिंक एंट्री पे ही नॉलेज, एंट्री पे ही एकदम आते ही सीधा बोला कि हम तो कुछ ऐसे ही, उनने बोला कि बड़ा सोचो, हम तो 10,000 साल की प्लानिंग करके चलते हैं। मैंने कहा वाह, माय गॉड, व्हाट अ गाय, माय मास्टर। मैंने कहा यार हम 20 साल सोच रहे हैं, उसमें भी मेरा एक दोस्त कह रहा था यार इतना दूर क्यों सोच हाँ रहा। और हम्म गुरुदेव देखो, माय गुडनेस, उनने तो पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। यू नो हम्म तो एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर। हम्म How he's being so simple, humble, yet he's running one of the biggest organizations in the world. या How? I'm so amazed and I keep wondering. Now, my question, what is the purpose of your life or human life?
तो ये क्वेश्चन मेरे मन में आया, बट उस टाइम पे क्या था, मैंने हैप्पीनेस कोर्स करा था, हम्म दिस वाज अबाउट 10 years ago। हम्म उसके बाद ना मैं नॉलेज को लिव कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैंने कहा हम्म आई वांट टू सी कि हम्म इसमें नॉलेज का क्या एक्सपीरियंस होता है। हम्म तो एक नॉलेज थी कि यू डोंट नीड टू आस्क एनीबडी, ऑल द आंसर्स आर फ्रॉम विद इन यू। ये हम्म कहीं मैंने नॉलेज सुनी थी गुरुदेव की, कुछ ऐसी हाँ नॉलेज, यू नीड टू मेडिटेट एंड अंदर ही, आपके अंदर ही भगवान गुरु या वो आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको आंसर देती है। हम्म तो मैंने कहा वाह। तो मैंने कहा चलो इसको करते हैं। तो उसके बाद मेरे को बहुत मौका मिला कि मैं अपने फादर से, अपने आर्टलिंग टीचर से, ऋषि नित्य प्रज्ञ जी वॉज माई टीचर, इवन हम्म गुरुदेव से मिला। तो मेरे को मौका मिला कि मैं उनसे भी ये क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द हम्म माई लाइफ, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन रेस इन ऑल हम्म ह्यूमन लाइफ। या बड़ा सोचो। हम्म बट आई डिडंट आस्क हिम, आई वाज लाइक आई विल गेट द आंसर फ्रॉम विद इन। हम्म और I meditated और I हम्म lived in life and I contemplated। जरूरी नहीं है हर चीज मेडिटेट करके आपको, थोड़ा सोच विचार करना भी जरूरी है। यस, हम्म श्रवण मनन नित्यत्यास, you हम्म listen, you contemplate, and then you make a commitment to practice it in your life. That makes the change happen. And change is not an overnight element. For change you need some time, you know change is like sowing a seed। आप seed को sow करते हो, eventually into a plant, then it grows into a tree and all of that, right? या So, and then I got my answer, but why don't you have your own answer? दिस वाज गोइंग कि आप इतने इजी चीजों नहीं बताने वाले, बट See? यू कैन गिव द See? हिंट्स। I will tell you। वैसे तो गुरु गुरु कहते हैं कि अगर, जैसे आपका अपना पर्पस हो सकता है, बट मुझे मुझे जो आंसर आया है ना, वाज वेरी हैप्पी विद इट ऑनेस्टली। जरूरी नहीं है वो आपका आंसर हो, जरूरी नहीं है वो सही आंसर हो, बट दैट वाज माय आंसर। जो आंसर आया, इन ऑल ह्यूमिलिटी, मुझे लगा कि जैसे ह्यूमन रेस इज बाय द यूनिवर्स फॉर द यूनिवर्स। अब देखो, प्लैनेट में हम क्रिएट करे गए, नेचर हैज क्रिएटेड अस समहाउ, के लिए, फॉर नेचर इटसेल्फ। कहीं ना कहीं हम मिलके ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, ऐसे प्लांटेशन कर रहे हैं, ऐसी चीज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम और नेचर को सपोर्ट कर सके, बेटर कर सके, तो ये मेरे लिए आया। वी आर बाय नेचर, क्रिएटेड बाय नेचर फॉर नेचर, क्रिएटेड बाय द यूनिवर्स फॉर यूनिवर्स। उसमें भी एक सेवा एलिमेंट आया, कि हम सेवा करने के लिए एक जन्म हुआ है। बट दैट वाज माय आंसर। डोंट लिसन टू माय आंसर, फाइंड योर ओन आंसर। यस। क्या? हाँ जी जी, बहुत सुंदर। मतलब आपने कहा कितने सारे चीजों को गो थ्रू करवा दिया इतने से अभी हमारे पास, मतलब फिर 40 मिनट्स में आपने पता है भगवत गीता का समरी करा दिया, गुरुदेव इतनी सारी चीजें बोलते हैं उसका समरी हम लोग के साथ शेयर करा। आई एम जस्ट अमेज्ड। इट्स सो थैंक यू सो लवली। मच। हाँ मतलब हाँ, जितनी भी ऑडियंस है मैं तो जरूर कहना चाहूंगी, गुरुदेव भी ये बात बोलते हैं कि लिव योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस। सो आई टोटली एग्री विथ यू दो, बट क्या होता है ना कि कभी कभी देयर शुड बी अ बेंचमार्क टू, हम हमारे दायरे तो खोलें, हमारे हमारे मन के दायरे तो खोलें। ओ, दिस इज एन इंटेंशनल क्वेश्चन कि नहीं सुनना है क्योंकि रेफरेंस मार्क्स होते हैं, राइट? देन कमिंग टू दिस, जैसे हमारे लाइफ में हमको एक रेफरेंस चाहिए होता है, दिवम जी। तो क्या हम ना कभी कभी गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, है ना, और रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, फिवरिशनेस भी आ जाती है। तो ऐसे अपने आप को वो उन सब चीजों से कैसे बचाएं? माया के इर्द गिर्द तो है ही, जैसे आपने 5 चीजें बताई जो हमको अफेक्ट कर रही है। तो ये सब चीजें कभी कभी हमारे मन को दुखी कर रही है, कभी कुछ हो रहा है। और डू लाइक शुड वी पर्सन बी अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, हाउ? और आपने इस चीज का तो आंसर दिया भी कि 5 चीजों को ऑब्जर्व करो और आगे निकलो। तो द क्वेश्चन हियर कम्स कि गोल ओरिएंटेड कैसे होना, कि कैसे उस चीजों को मेंटेन करना। अभी 20 साल का प्लान, तो अब हम 10,000 प्लान का प्लान बनाए या नहीं बनाए? लाइक हाउ डू आफ्टर आफ्टर थिंकिंग अबाउट गुरुदेव, आफ्टर सीइंग योर जर्नी अभी तक, व्हाट आर योर गिव अवेज टू आवर ऑडियंस एंड अस दैट क्या प्लान्स करना चाहिए फिर?
यस, डेफिनेटली 100%, 1000% करना चाहिए। हम्म आप बिलीव नहीं करोगे, वैसे गुरुदेव हम्म भी कहते हैं, हम्म हिज विजन, व्हाट इज हिज विजन? हाँ हाँ See a smile on every face, see the big vision, right? जो हम्म गोल, जो विजन आप लेते हो लाइफ में, हम्म उसके प्रोपोर्शनेट ही आपको एनर्जी, रिसोर्सेज, सपोर्ट लाइफ में मिलता है। अगर आप बड़ा विजन नहीं रखोगे, अगर आप बड़ा लक्ष्य नहीं रखते, हम्म तो फिर वो सारा सपोर्ट, एनर्जी, रिसोर्सेज आपके पास नहीं आते। सो फॉर हम्म रिवर टू फ्लो, एक नदी को एक सही लय में चलने के लिए दोनों बैंक्स की जरूरत होती है। यस, हम्म उसे फ्लड कह दिया जाता है, हर जगह फैल रही है, ये हम्म ऑल ऑफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। यस, हम्म जब हमारे पास गोल नहीं होता लाइफ में, कोई एम नहीं होता, कोई विजन नहीं होता, तो हम भी हर जगह बस ऐसे ही फैल रहे हैं, खुद की लाइफ भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल चल रही है, इधर उधर भी थोड़ा बहुत स्पॉइल हो रहा है। यू गॉट इट? पास एक लक्ष्य होता है तो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इट। यस, एंड बड़ा सोचो। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, लक्ष्य के ऊपर आता हूँ, गोल के ऊपर आता हूँ, क्या करते हैं? वन इज, वो पहले अपने रिसोर्सेज मैप करते हैं। ओके, हाउ मच डू आई हैव, व्हाट स्किल्स डू आई हैव, व्हाट रिसोर्सेज डू आई हैव, बेस्ड ऑन दैट I will decide what to do, right? And yeah the other second type, this is 95% of the people, it's fine, it's normal, it's natural, right? But other 5% of the people in the world are the leaders, are the prime ministers, presidents, are the top bosses of different industries, different companies. yeah Why? Because first they choose a big vision, they take a big goal, a big responsibility. They decide on what big responsibility, what big goal, what big vision, what big cause they want to take, and then they move in the world, and then they observe कि उसके related learnings come, money comes, people come, resources come, Yeah, I'm not talking about whether it is easy or it is not, but it is a life worth living. तो सिमिलरली, जितना बड़ा आपका विजन, आपका गोल होगा, उतनी अच्छी आपकी लाइफ की दिशा, और उतना आपको अनुभव, उतना आपको आप उपयोगी बनोगे लाइफ। एंड इट्स अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, या बड़ा yeah विजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहीं ना कहीं एक कॉज है, यू नो। हाँ सो wow दिस इज व्हाट आई पर्सनली। शिवम जी आई कैन लिटरली सेंस फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज दैट जो आपने अभी बात कही ना वो इतने पैशन और इतने कन्विक्शन के साथ कही ना कि लाइक आई कैन सेंस इट कि आपने कितनी बार उस बात को जिया है आई कैन सेंस दैट and it's so fortunate to hear it from you that you have experienced it and like आई विल आई विल please ऐड go टू ahead दिस। yeah please डर, please डर लगेगा, हाँ you हाँ will feel fear, you will feel हम्म stress and anxiety। कुछ भी हम्म, हम नया करते हैं, हमारे अंदर बॉडी मैकेनिज्म ऐसा हाँ है, जो हाँ एंशिएंट टाइम से आ रहा है। जो हाँ हमें कुछ भी रिस्की लगता है, तो हमारे अंदर वो डर के हार्मोन, वो फियर के हार्मोन आते हैं, ताकि हम उससे बचा सके। तो हम्म हर कोई चेंज या कोई बड़ा अगर आप लेते हो गोल, तो हम्म लगेगा, हम्म बट यू स्टिल हैव टू move ahead with it. Obviously, it should be a sensible goal. It should be a हम्म goal जो सबके beneficial के लिए, सबके फायदे के लिए हो। हम्म लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हम्म सबकी खुशी, सबके फायदे के लिए करा हुआ कार्य, और हम्म आपका भी फायदा हो। इट्स नॉट हम्म अबाउट कि चलो मैं दुनिया का कल्याण कर ले चल रहा हूँ, लेकिन मैं मर रहा हूँ। नो, हम्म आप और सामने वाला व्यक्ति सेम है, ऑल सेम एट द सोर्स, यू नो। हम्म तो आप अगर सामने के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन खुद को आपने पेन में डाला हुआ है, ये भी गलत है। अगर आप अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन बाकियों को आपने पेन में डाला हुआ है, ये भी गलत है। हम्म बिकॉज, yeah so you have to take a holistic approach. Yes, yeah, over to you. wow so lovely answer so पता है ऐसा बोलते हैं क्योंकि आपने डर की बात की तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू दैट कि ऐसा बोलते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा डर ना अपनी मृत्यु से होता है ना और मैंने मैंने कुछ मेरे नियरर मेंटर्स हैं जिनको मैंने उनकी सेकेंड लाइफ में देखा है एज इन मतलब उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया एंड I've seen they are transformed to something else and I can see the change in them that the person that they were and now they are so I feel that that this fear so close to you transform a human being transform a personality like you talk about the growth mindset people and the people that have king mindset mentality
सो अचानक से ना वो ह्यूमन वाली मेंटालिटी या वो एनिमल वाली मेंटालिटी से ना राजा वाली मेंटालिटी आ जाती है ना। तो आई डोंट नो, लाइक आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन, देखिए अगर क्या आपने कभी डेथ को एक्सपीरियंस किया या ऐसा कुछ यूरेका मोमेंट आपके टर्निंग पॉइंट आया आपके लाइफ में जिसमें आपने ये जो माइंडसेट एकदम से चेंज हो, क्योंकि देखिए आपका जो माइंडसेट है ना खतरनाक राजा लेवल वाला माइंडसेट है, तो ऐसा क्या चीज हुआ जिसने आपका ये माइंडसेट बना दिया? माय गॉड, मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं है जो आप स्टोरीज हो, ऐसी बहुत सी स्टोरीज है। हाँ आई हाँ। थिंक वी हैव 10 minutes. I believe it's a 1 hour session, or can we या extend? yeah, like we will have to like to talk to you more. We have audience question as well, but yeah, So I would really love to answer all these questions. Yes, I have mm-hmm, had a near-death experience. mm-hmm, I have had very scary, very risky, very tough experiences also, and I would love to share openly. mm-hmm, Obviously, when there is more time. yeah, But जरूर मे बी नेक्स्ट सेशन जब हम करेंगे, आई वुड लव टू mm-hmm, शेयर। बट उसका एक बेनिफिट ये होता है, दो mm-hmm, बेनिफिट होते हैं। एक, जब आप उससे गुजर जाते हो हाँ हाँ, तो आपका डर खत्म हो जाता हम्म है। हम्म यू नो, हम्म कहते हैं व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रोंगर। ये हर जगह अप्लाई हम्म, नहीं होता है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ बट हाँ हाँ, दूसरा, जब आपके पास एक गुरु होते हैं या आपके पास एक श्रद्धा होती है, आपके जो भी गुरु हो, नॉट जस्ट सी माय गुरु श्री श्री रविशंकर जी, कोई और हो सकते हैं, या हम्म जिस भी भगवान, जिस भी देवी देवता में मानते हैं, या आप अपने फादर मदर में मानते हैं, जिसमें मानते हैं, जब आपके पास एक श्रद्धा होती है कि कोई है, मेरा अपना है, मेरे साथ है, हम्म टाइम्स कुछ भी आ जाए, देर इज अ पावर विद यू दैट विल टेक केयर ऑफ यू। तो हम्म आप इजीली हंसते हंसते गुजर जाते हो। हाँ, पहले दूसरे एक्सपीरियंस में आपको बहुत ही ज्यादा पेन एंजाइटी हो सकती है, बहुत ही ज्यादा डर हो सकता है। बट हम्म जब आप उसे पार करते हो तो आप रियलाइज करते हो, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस। यस, हम्म यू आर वे बिगर देन एनी एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, यू आर द एक्सपीरियंसर। यस, हम्म ऐसे ऐसे अनुभव आपके पास लाइफ में जाते हैं आपको। एक स्टोरी है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, छोटी स्टोरी। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे पिताजी ने स्टोरी सुनाई थी। हम्म अ, तो पिताजी वाज गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी फादर। हम्म तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि व्हाट इज द, भगवान का काम क्या है। तो एक राजा होता है, ही वाज अ टफ, स्ट्रिक्ट राजा। तो एक दिन ऐसे ही बैठे सभा में उसको ऐसे ख्याल आता है कि यार ये भगवान का काम क्या है। किसी ने छेड़ दिया उनके मन में बैठ के। अच्छा, वो ऐसे राजा थे, वो कोई इजीली ना तो मानते थे ना छोड़ पाते थे, कोई ख्याल, कोई विचार, कोई सवाल अगर मन में आ जाए तो व्हाट इज द पर्पस, ये व्हाट इज, भगवान का काम क्या है, भगवान का काम क्या है। तो हुआ क्या, उन्होंने सारे मंत्रियों को बुलाया, सबको बुलाया, पूरी सभा बोल, सबसे पूछा कि भगवान का काम क्या है। किसी ने ये आंसर दिया, किसी ने वो, किसी ने ये नॉलेज, किसी ने वो। सब अच्छी थी, सब अच्छी लग रही थी, बट फिर भी उन्हें कुछ, उन्हें अंदर नहीं जा रहा था, उन्हें नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर अगले दिन उन्होंने सारे के सारे स्कॉलर्स को बुलाया, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, जितने टॉप स्कॉलर्स, टीचर्स, अध्यापक थे उनके साम्राज्य में, उन सबको बुलाया। उन्होंने ज्ञान दिया, ये वो वगैरह, नहीं ये भी नहीं। तीसरे दिन उन्होंने सारे पंडितों को बुलाया, सबको, उन्होंने नॉलेज दी, नहीं वो भी उन्होंने जा रही थी, दे ही डिडंट अंडरस्टैंड। चौथे दिन उनने गुस्से में आकर राजगुरु को बुलाया, जो मेन प्रीस्ट होते हैं एक साम्राज्य के। उनने, प्रीस्ट ने भी, अच्छा उनको पूरा फेथ था प्रीस्ट को कि अब मेरे तो काम ही यही है, मान जाएंगे। तो उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने शेयर करा, बट कहीं ना कहीं उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। उन्हें इतना गुस्सा आया राजा को, उसने बोला कि अगर मुझे, नहीं, अगले हफ्ते तक कहीं भी जाओ, दुनिया में घूमो, कहीं भी जाओ, मुझे इसका आंसर चाहिए। अगर तुमने मुझे अगले हफ्ते तक आंसर नहीं दिया तो देन तुम्हारी लाइफ ओवर। यस, तुम्हें सजा मिलेगी, दंड दिया जाएगा, या मृत्यु दंड या कोई और दंड। बस फिर वो पंडित जी निकले, निकले, पहुंचे हर जगह, गए, मिले, बात करे, सबके उत्तर सेम थे। सारे ज्ञान ऑलरेडी कोर्ट में सुन चुके थे, या वो खुद जानते थे, वो बोल चुके थे। ऐसा क्या, सारा भ्रमण कर करा के फाइनली हफ्ते, पूरा हफ्ता घूम घाम के, लोगों से बात करके थक हार के, एक दिन, लास्ट दिन जब बचा था, रोते हुए एकदम एंजाइटी में अपने घर के बाहर, खेत था पीछे, खेत में जाके बैठे।
और बैठे बड़ी टेंशन में, कुछ समझ नहीं आ रहा, आंसू निकल रहे हैं कि कल आखिरी दिन है जीवन का। वैसे ही शाम का समय हो गया था कल सुबह। तो एक एक व्यक्ति, छोटा सा बच्चा आता है, यस, बकरी चाल, और वो आके कहता है कि अरे महाराज क्या हुआ, गुरुदेव आप बताइए, ये आप तनाव में लग रहे हैं। नहीं नहीं, तुम नहीं समझोगे, तुम बच्चे हो। कहते महाराज कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, नहीं समझ पाएगा कोई बात नहीं, शायद आपके बोलने से मन ही हल्का हो जाए। वो जो टीचर थे, वो जो पंडित जी थे, उन्होंने बोला कि ये है, राजा को जानना है कि भगवान का काम क्या है, और अगर कल नहीं हुआ तो मृत्यु तक हो सकती है। तो वो बच्चा, जो छोटा सा बच्चा था, वो बकरी को या गोट्स को चलाता था। तो वो हंसा, कहता है हाँ हाँ हाँ, ओके, अरे बस इतनी सी बात है पंडित जी, आप चिंता मत करिए, इसका उत्तर तो बहुत सरल है, ये तो मेरे पास है। कहते क्या है उत्तर, बताओ। कहते नहीं नहीं पंडित जी, वो आप मैं नहीं बता पाऊंगा। आप एक काम करिए, कल सुबह जाइए और आप सभा में राजा को बोलिए मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ जिसको उत्तर पता है। कहते नहीं नहीं, ऐसे कैसे। कहते "कि आप निश्चिंत होकर सोइए, पक्का आप मेरे पे डाल दीजिए। कहते ठीक है। अगले दिन कोर्ट में जाते हैं, जो पूरी किंग्स कोर्ट, वहां पे जाते हैं, राजा बैठे होते हैं सीट पे गुस्से में कि आज तो अवसर मिलेगा, नहीं तो ऐसी पूरी भरी सभा में, और सब सब डरे कि भाई ये तो अब क्या होगा। तो जाके पूछते हैं कि महाराज मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ, आपका उत्तर मिल गया, हाँ जल्दी लाओ। तो बच्चा आता है अपनी बकरी के साथ, बच्चा आके खड़ा हो जाता है, तो महाराज और गुस्से में, क्या तुम मुझे मूर्ख समझा है, ये बच्चा हमें क्या ज्ञान देगा। फिर पंडित जी कहते हैं एक बार उसकी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। तो कहते हैं हाँ हाँ बोलो। तो कहते हैं, हाथ जोड़ के बच्चा कहता है महाराज, ऐसी आपकी ही प्रथा है किंगडम की, कि जो भी ज्ञान देता है वो एक उच्च स्थान पे बैठा होना चाहिए, और प्रश्न पूछने वाला जो ज्ञान लेता है वो एक थोड़ा सा नीचे स्थान पे बैठा होना चाहिए। ये आप ही का बनाया हुआ लॉ है, ये आप ही की प्रथा है महाराज। मैं हाँ। चाहूंगा कि ये प्रथा का पालन हो। कहते हैं, हाँ बात सच है, ठीक है तो बोलो। तो कहते हैं ठीक है, चलो एक काम करो, मैं नीचे आता हूं तो ऊपर आ जाओ। तो महाराज सीढ़ी नीचे उतर रहे होते हैं, और बच्चा सीढ़ी उतर के जाके और पूरी सभा देख के ये क्या हो रहा है। और वो छोटा सा बच्चा था, वो गोट बकरी चालक हाँ या हाँ हाँ, गोट चालक चरवाहा चरवाहा। था, धीरे 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 जाके राजा हाँ। की कुर्सी में बैठ जाता है। और महाराज नीचे खड़े होकर कहते हैं बोलो, अब भगवान का काम क्या है। और अरे ये क्या हो गया। कोई हिम्मत नहीं कर सकता था इस राजा से पंगे लेने का। और यहाँ पे ये बच्चा जाके राजा की गद्दी में बैठ गया है। वो राजा तो मतलब थोड़ा सा इवल था। हाँ हाँ हाँ। तो वो बच्चा कहता है महाराज, हम्म यही है भगवान का काम। क्या, कि टू रेज द हम्बल हम्म। एंड टू बिफॉल द एरोगेंट। वाह। राजा को रंग बनाना और रंग को राजा। जो हम्बल, जो सिंपल है, उसको ऊंचाई पे ले जाना, और जो हाँ। ऊंचाई पे है जिसमें अहंकार आ गया है उसको एकदम नीचे लाना। हम्म। यही है भगवान का काम। बड़ी प्यारी कहानी है ये, बड़ी ही मस्ती भरी कहानी है। तो वही है कि जब गुरु आपकी लाइफ में होते हैं, या कोई ऐसी, आप किसी को मानते हो, हम्म तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं लाइफ में ऊपर भी आपको वही चढ़ाते हैं, और ऐसे हम्म। पड़ाव आते हैं जहां नीचे भी आपको वही लाते हैं। प्रॉफिट भी आपको वही देते हैं, और लॉस भी आपको वही कराते हैं। सक्सेस भी आपको वही देते हैं, और फेलियर भी आपको वही कराते हैं। तो एक बारी जब आप इस ट्रांजिशन से एक या दो तीन बारी गुजर जाते हो, तो आपके हम्म अंदर कुछ चमकता है, वाह, एक वंडर, विस्मय हम्म होता है। हम्म। वाह, चकित मुद्रा, क्या वाह, क्या खेल है तेरे। और आपको अनुभव होता है यू आर नॉट द डूअर। तो फिर आपके अंदर, अच्छा, ज्ञान जो है ना, उस ट्रांजिशन में, जो हम्म श्रद्धा है, जो वो उस ट्रांजिशन में ऐसा बैठ जाता है आपके अंदर, हम्म तो आपको वैसा एक्सपीरियंस होता है। फिर आपको रियलाइज होता है कि देयर इज अ हम्म पावर विद यू। जो गेन है और जो फॉल है, वो दोनों वही पावर करा रही है। वो आपको, वो एक गुरु है आपका ध्यान रख रहे हैं, देवी माँ है आपका ध्यान रख रही है, आपके जो भी, जिसको भी आप मानते हो वो आपका ध्यान रख रहे हैं।
तो और हमें तो ज्ञान से ये भी पता है कि मृत्यु अंत नहीं है, इट्स जस्ट Yeah, ट्रांजिशन, yeah, इट्स जस्ट अ yeah, ट्रांजिशन, राइट? yeah, So yeah. we've come from many lifetimes and we are Hmm. going to go probably to other lifetimes, other planes of existence. Hmm. You know, Wow. and Earth is just like a school. We're here to learn, we're here to enjoy, we're here to party, we're here Mm-hmm. to meditate, we're here to Hmm. serve. Yeah, we're here to live a holistic life. Yes. Yeah. So, over to you. यस दिवम, आपने बहुत स्मार्टली एकदम शार्प 10 पे अपना सवाल का प्रश्न का उत्तर दिया। आई एम लिटरली वंडरिंग कितना खतरनाक टाइप टाइप का आपका टाइम मैनेजमेंट है। आई कैन लिटरली वंडर अबाउट एंड आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। हाँ हाँ, कुछ बोल रहे थे, बोलिए। I just said, see, it's 10 sharp. हाँ, किसी का प्रश्न आया है, प्लीज रिपीट द मॉरल। उनको फिर से प्लीज बोल दीजिए आप एक बार, एक लाइन में मॉरल। So now, इससे पहले मैं moral बोलूं, I want each and every one of you to write down what you feel is the moral of this talk. What do you feel is the moral of this story? Or what was your aha moment? आप, मैं चाहता हूं जितने भी 60 70 या जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आप चैट में लिखिए, या आप जहां पे भी है आप कहीं पे पेन पेपर पे लिखिए कि इस टॉक में से आपके लिए वो एक ज्ञान क्या था, आपके लिए वो एक आहा मोमेंट क्या था, एक पल क्या था, या वो मॉरल क्या था वो आपके लिए. सो वी कैन ऑल राइट. यस. ओके. डेफिनेटली। सो एंड यू कैन रीड इट या ऑल्सो. या या सो लविशा बोल रहे हैं, प्लानिंग इज द थिंग दैट शी हैव लर्न फ्रॉम। हमारे पास इतने सारे लोग हैं, प्लीज प्लीज आप एनकरेज कर सकते हो। इतना सारा किसी ने सुमित पाटिल जी लिख रहे हैं, complete session with aha moment. Oh my god. It is so amazing, actually ditto. मीर गांधी जी बोल रहे हैं विजन एंड बिग थिंकिंग। वीरेंद्र जी बोल रहे हैं गिव योर 100% एनर्जी, इंक्रीजेस योर एनर्जी। ओके, कोई जूम यूजर है वो बोल रहे हैं थिंक बिग एंड रिसोर्स फॉर द सेम विल फॉलो। वाओ। तो आकाश बोल रहे प्राणा लेवल इंक्रीज करने के लिए, आई थिंक इस तरह से उन्होंने बोला है। अनुपमा अन्नपूर्णा जी बोल रही है आई एम नॉट द डूअर। अन्नपूर्णा जी कितना प्यारी बात बोली। हैविंग अ बिगर विजन, ह्यूमैनिटी, सेल्फ रियलाइजेशन, इंक्रीज एनर्जी, पर्पस ऑफ लाइफ। वाओ। गिव 100%, faith and belief, think big, feeling guru grace. Actually, it's all about वाह। दिवम जी, मतलब मेरे को बिल्कुल मन नहीं हो रहा है सेशन एंड करने का। I understand that there are so many commitments that you have. I know you are a very, very busy personality, but I would love to hear I back am from you. both. I will just, I'm both. I am very busy from outside, but I'm absolutely free from within. Wow. अंदर से मैं पूरा मुक्त हूं, मैं फ्री हूं. बाहर से मैं पूरा बिजी हूं, इन्वॉल्व हूं, सेवा या काम में लगा हूं. Yeah. So I would like to have you again next time on the podcast, and I will have so many questions still. And it was so, so amazing to share the screen with you, share so much depth of knowledge that you shared with us. We have our team as well. And if anyone would like to share their gratitude or anything, usually if you are there, please, you are the person who connected us with Devam. So, can you please be there if you are there on that call? Before that, I would like to thank you. Thank you so much for allowing me to be here, for allowing me to share, you know, and I'm so grateful. And thank you to each and every participant who was there listening to me, who was there sharing and interacting with me through the chat and other mediums. Thank you so much. I'm truly grateful for this. I'm very honored and privileged that I was one of the chosen ones for your very important podcast, which is the need of the hour. Thank you so much. Thank you so much, Devam ji. I think we don't have him here, but on behalf of our team, we are so so grateful to have you. And I have, मैंने तो मन में डिसाइड कर लिया एक बार आपका कॉर्पोरेट कोर्स भी भगवान करे हम जल्द से जल्द हमारी टीम वाले लोग भी करें। और आई कैन सेंस कि आपके 1 घंटे का सेशन इतना अमेजिंग होता है, आपके कोर्सेस कितने अमेजिंग होंगे। I am so honored to have you at the podcast, and may Gurudev always be with you. May He bless you with all the grace and knowledge that He can with for you. Thank you so much. Thank you, everyone.
So thank you so much everyone for being here. And हम दिवम जी को नेक्स्ट टाइम और बहुत जल्द मिलेंगे फिर से। और आज के लिए, अभी के लिए ये सेशन को यहीं विराम देना है। और भगवान करे आपने जो भी शब्द इस ब्रॉडकास्ट में सुने वो सब आप जीवन में अनुभव करने के लिए गुरुदेव आपको पात्र बनाए। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। बाय बाय। थैंक यू देवम जी। Thank you. So thank you, everyone. If you have any things to share, you have us, our contact numbers, or anything you would like to speak or share, you can communicate with us. If you want to bring someone in the sessions, you can invite other guests, or especially the guest you have, you want to get their perks of knowledge. आप उनके बारे में हमको शेयर कर सकते हैं तो हम उन्हें भी इनवाइट करेंगे। और I hope we have met the expectations, or we have exceeded the expectations of this session. That is